رات کے سناٹے میں ایک چھوٹا سا قصبہ، مقامی قبرستان کے قریب سے گزرنے والے لوگوں نے ایک قبر کے اوپر عجیب منظر دیکھا۔ درجنوں سیاہ بلیاں اس قبر کے گرد چکر کاٹ رہی تھیں، کبھی پنجوں سے مٹی نوچتی اور کبھی زور زور سے چیختی۔ لوگ ڈر گئے، کچھ نے استغفار پڑھا، مگر یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ یہ قبر کسی ایسی عورت کی ہے جس نے دنیا میں بڑا گناہ کیا تھا۔ یہ قبر دراصل رقیہ نامی عورت کی تھی۔ رقیہ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں پیدا ہوئی۔ اس کا تعلق ایک ایسے گاؤں سے تھا جہاں غربت اور مجبوری انسان کے خوابوں کو جنم لینے سے پہلے ہی مار دیتی تھی۔ رقیہ کے والد ایک مزدور تھے جو دن رات کھیتوں اور اینٹوں کے بھٹوں پر کام کرتے تھے تاکہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل سکے، لیکن غربت کا پہاڑ اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے کبھی نہ ہٹا سکے۔ جب رقیہ ابھی چھوٹی تھی تبھی اس کے والد بیمار پڑ گئے۔ علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بیماری بڑھتی گئی اور ایک دن وہ رقیہ کو ہمیشہ کے لیے یتیم چھوڑ گئے۔ والد کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داری رقیہ کی ماں پر آ گئی، مگر ایک بیوہ عورت کے لیے اس زمانے میں روزی کمانا کتنا مشکل تھا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رقیہ اور اس کی ماں اکثر دونوں بھوکی سو جاتی تھی۔ ماں مزدوری کے لیے گھروں میں جھاڑو پل ملاتی تھی، لگاتی، برتن دھوتی، مگر ملتا پھر بھی اتنا ہی تھا کہ بمشکل ایک وقت کا کھانا پورا ہو پاتا۔ رقیہ کے خواب دوسرے بچوں کی طرح سادہ تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ پڑھ لکھ کر استاذہ بنے یا کسی نیک گھرانے میں شادی ہو جائے، مگر غربت کے اندھیروں نے اس کے یہ خواب کچل دیے۔ اسی طرح کام کرتے کرتے رقیہ کی ماں کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ اب رقیہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے ماں کی طرح لوگوں کے گھر کے کام کاج کر کے گزر بسر کیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور رقیہ جوان ہو گئی۔ جب رقیہ جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو گاؤں کے ہی ایک شخص نے اس کی معصومیت اور غربت کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے رقیہ کو محبت کے جوئے خواب دکھائے۔ کبھی اسے کہتا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گا، کبھی وعدہ کرتا کہ میں تمہیں اس تنگ دستی سے نکال لوں گا، اور کبھی کہتا میں تم سے نکاح کروں گا۔ ایک مجبور لڑکی کے لیے یہ باتیں امید کی کرن بن گئیں۔ رقیہ نے دل سے اس پر بھروسہ کیا، لیکن یہ بھروسہ ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ وہ شخص دراصل بدماش اور جواری نکلا۔ وہ اسی طرح لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پنسا کر انہوں کوٹھے میں بیچ دیتا تھا اور اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ اسی طرح اس نے رقیہ کو بھی پہلا پھسلا کر گاؤں سے باہر لے گیا اور پھر شہر میں لے جا کر اسے بیچ دیا۔ شروع میں رقیہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس جہنم سے نکل سکے۔ وہ روتی، چیختی، اللہ سے دعا کرتی کہ کوئی اسے اس قید سے آزاد کرائے، لیکن دنیا ظالم تھی۔ عزت ایک بار چھن جائے تو پھر لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ جس گھر یا ادارے میں جاتی، لوگ اس کا ماضی جان کر اسے دھتکار دیتے۔ آخر کار بار بار کے دھتکارے جانے اور بے عزتی کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، جب دنیا نے مجھے بدنام کر ہی دیا ہے تو اب میں لڑتے لڑتے کب تک تھکوں گی؟ میرے لیے اب اس دنیا کی حقیقت کو قبول کر لینا ہی بہتر ہے۔ رقیہ اب وہ معصوم لڑکی نہیں رہی تھی جو کبھی غربت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر روتی تھی۔ وہ اب ایک ایسی عورت بن چکی تھی جس کا نام شہر کی رنگین محفلوں میں لیا جاتا تھا۔ اس کے قدموں میں دولت بچتی تھی، زیورات اس کے جسم کو ڈھانپتے تھے اور دنیا کے لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ رات کی محفلیں، ساز، گانے، شراب اور کہکہے، یہ سب اس کے ارد گرد تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سکون نہ تھا جو ایک عبادت گزار بندے کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ وہ جب محفل کے بیچ ہنستی تو اس کے دل کے کسی کونے میں ایک آواز اسے جھنجھوڑتی، رقیہ، یہ ہنسی حقیقت نہیں، یہ ہنسی تیرے دکھ چھپانے کے لیے ہے۔ جب لوگ اس کے قدموں میں پیسے نچھاور کرتے تو ایک لمحے کے لیے وہ خود کو طاقتور سمجھتی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سوچتی، یہ دولت، یہ سونا، یہ سب کس قیمت پر؟ اپنی عزت بیچ کر، اپنی روح کا سکون قربان کر کے۔ رات جب ختم ہوتی اور محفلیں بکھر جاتی تو رقیہ اکیلی رہ جاتی۔ کمرے میں پھیلی خوشبو اور بکھرے ہوئے زیورات بھی اس کے تنہائی کے زخموں کو نہیں بھر پاتے۔ یہی وہ وقت ہوتا جب اس کا دل بے چین ہو کر رب کی طرف کھنچتا۔ اکثر وہ قرآن پاک الماری سے نکالتی، آیات کھولتی، لیکن الفاظ زبان سے ادا نہ ہوتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اور ہچکیوں کے ساتھ وہ کہتی، یا اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے اپنی عزت، اپنی روح سب کھو دیا۔ اگر میں دوبارہ لوٹ سکتی، اگر میں تجھ سے معافی مانگ کر تیری بندی بن سکتی تو میں سب کچھ چھوڑ دیتی۔ اس کے الفاظ سچے تھے، اس کا رونا دل سے نکلتا تھا، مگر یہ کیفیت زیادہ دیر قائم نہ رہتی۔
जैसे ही सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल होती, दुनिया फिर से उसे अपनी तरफ बुला लेती। नई महफिलों के वादे, नए गाहक, नए ज़ेवरात, ये सब इसकी कमज़ोर नीयत को डगमगा देते। यूं इसकी ज़िंदगी एक दोहरी जंग में गुजर रही थी। एक तरफ दुनिया की चमक दमक, लज्जतें और अय्याशियाँ, और दूसरी तरफ दिल का सुकून जो उससे हमेशा के लिए छिन गया था। रकैया के चेहरे पर जो मुस्कराहट लोग देखते थे, वो सिर्फ एक नकाब थी। हकीकत ये थी कि वो रात के अंधेरों में अपने रब के सामने टूटती थी, लेकिन कमज़ोरी, खौफ और दुनिया क्या कहेगी की जंजीरों ने उसे कैद कर रखा था। रकैया अब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुकी थी। शहर के बड़े बड़े लोग उसकी महफिल में आने लगे थे, लेकिन इनमें से एक शख्स ने उसकी ज़िंदगी और उसके नसीब पर ऐसा दाग लगा दिया जिसने उसे हमेशा के लिए रुस्वा कर दिया। वो शख्स एक शरीफ घराने का सरबराह था, एक मस्जिद के नमाजी, सफ़ेद पोश, 4 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। उसकी बीवी नेक, पर्दादार और शौहर की ताबेदार थी। लेकिन एक दिन वो शख्स रकैया की महफिल में आ बैठा। शुरू में वो हिचकिचाया, मगर रकैया की खूबसूरती ने और उसकी चालाक बातों और मसनूई मोहब्बत ने उसके दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो रात रात भर रकैया के यहाँ बैठता और सुबह मस्जिद का रास्ता भूल जाता। इस आदमी ने रातों को देर से आना शुरू कर दिया। घर में हालात बिगड़ने लगे। उसकी बीवी रातों को जागती रहती, बच्चे को दिलासे देती कि अब्बा थक कर आए हैं, इसलिए देर हो गई है। मगर हकीकत ये थी कि वो शख्स रकैया की गोद में हंसी मजाक कर रहा होता। बच्चों का खर्च कम होने लगा, घर में गुर्बत ने सर उठा लिया था, और एक नेक औरत की इज्जत नफ्स टूट गई। बीवी ने कई बार शौहर को समझाया, रोती रही, कुरान उठाकर उसके सामने रख दिया, मगर वो शख्स अब रकैया के जादू में गिरफ्तार हो चुका था। रकैया ये सब जानती थी। वो जानती थी कि ये आदमी किसी शरीफ औरत का शौहर है, कई बच्चों का बाप है, लेकिन इस पर लालच और हवस का पर्दा पड़ चुका था। रकैया ने कभी उसे रोकने की कोशिश ना की, बल्कि अपनी चालाकियों से और करीब कर लिया। जब उस शख्स ने अपने बच्चों के लिए रोटी कमाना तक छोड़ दी, तब भी रकैया ने उसे नहीं टोका। उसकी महफिल में कहकाहे गूंजते थे, मगर किसी मासूम औरत की सिसकियां उन कहकाहों में दब जाती थीं। रकैया को दौलत चाहिए थी, मोहब्बत नहीं। वो उस शरीफ इंसान की मोहब्बत को देखकर अंदर ही अंदर हंसती। वो कहती, ये सब मर्द एक ही जैसे होते हैं, चंद बातों और हसन के जादू से अपना सब कुछ लुटा देते हैं। चंद ही महीनों में इस शरीफ औरत का घर टूट गया। शौहर ने बीवी से झगड़े शुरू कर दिए और उसे तलाक की धमकियां देने लगा। बिलाखिर एक दिन इस औरत को वाकई तलाक दे दी गई। वो मासूम बीवी रोती बलकती अपने 4 बच्चों समेत मेके चली गई। इस औरत ने कई रातें आंसू बहाते गुजारी। वो कहती थी, या अल्लाह, मैंने अपने शौहर के लिए सब कुछ किया। मैंने पर्दा किया, उसकी खिदमत की, उसके बच्चों को पाला, फिर भी मेरा घर छीन लिया गया। या अल्लाह, अगर मेरा कोई कसूर नहीं तो मुझे इंसाफ दिला। वो औरत तहज्जुद में उठकर दुआ करती थी, हाथ उठाकर अल्लाह से फरियाद करती थी कि परवरदिगार, जिस औरत ने मेरा घर उजाड़ा, मेरे बच्चों को यतीम सा कर दिया, मेरे दामन को बेकसूर होते हुए दागदार किया, इस पर अपना अजाब नाजिल फरमा। दुनिया में शायद किसी ने ना देखा हो, लेकिन मजलूम की दुआ अर्श को हिला देती है। यही वो लम्हा था जब रकैया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुल्म किया। इसने न सिर्फ अपना किरदार तबाह किया, बल्कि एक शरीफ औरत के आंगन को वीरान कर दिया। उलमा कहते हैं कि जिस औरत के सबब किसी का घर उजड़ जाए, वो औरत कभी अल्लाह की रहमत के करीब नहीं जा सकती जब तक तौबा ना करे। रकैया के नसीब पर भी एक स्याह मोहर लग चुकी थी। अब उसकी महफिलें रंगीन जरूर थी, मगर उसकी तकदीर पर अंधेरा छा गया था। इस औरत की बद्दुआ और आहें अल्लाह के यहाँ रायगा ना गईं। ये वाक़या रकैया के अजाब की सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि इसने अल्लाह की बंदी की आंखों से आंसू बहाए, इसके बच्चों से नवाला छीना और एक नेक घर को जहन्नम बना दिया। यही जुल्म बाद में इसके कब्र के हाल को और भी हौलनाक बना गया। इसी तरह रकैया ने कई मासूम लड़कियों के घर अजाड़ दिए। वक्त किसी के लिए नहीं रखता। वो रकैया जो कभी महफिलों की रौनक थी, आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगी। जवानी का वो चमकता हुआ चेहरा अब झुर्रियों से भरा हुआ था, और वो नाज़ो अंदाज जो कभी लोगों को दीवाना करते थे, अब उन पर कोई तवज्जो नहीं देता था। जो दरवाजे कभी रात रात भर इसकी आहट के मुंतज़िर रहते थे, अब बंद हो चुके थे।
वही मर्द जो कभी दौलत के अंबार लगाते थे अब नई औरतों के पीछे जा चुके थे। रुकैया के कमरे में अब सन्नाटा छा गया था। फिर एक दिन अचानक एक ऐसी बीमारी ने उसे आ घेरा जिसने उसका जिस्म तोड़ कर रख दिया। बुखार से कपकपाती, खांसी से दम घुटता, हड्डियों से गोश्त गलता गया। वो औरत जो कभी सोने और रेशम के बिस्तर पर सोती थी अब एक पुराने टूटे बिस्तर पर तड़प रही थी। कोई पूछने वाला न था। वो माँ जिसने बचपन में बेटी के लिए रो रो कर दुआएं की थी कब की उस दुनिया से जा चुकी थी। और वो लोग जिन्हें उसने अपनी महफिलों में खुश किया था अब उसकी खबर लेना भी गवारा नहीं करते। रात के सन्नाटे में रकिया की कराहें गूंजती। कभी दीवार से टेक लगाकर वो खुद कलामी करती, काश मैंने इस रास्ते को छोड़ दिया होता, काश मैंने तौबा कर ली होती, या अल्लाह मुझे एक और मौका दे दे। लेकिन मौका ख़त्म हो चुका था। वो लम्हा आ गया जब मौत उसके करीब पहुंच गई। इसकी आंखों के सामने एक एक करके वो तमाम चेहरे घूमने लगे जिन्हें उसने बर्बाद किया था। वो मासूम औरतें जिनके घर उसने उजाड़े थे, वो बच्चे जो यतीमों की तरह रोते थे, वो मर्द जो गुनाहों में डूब गए, सब मंजर इसकी आंखों के सामने थे। जुबान पर सिर्फ एक जुमला था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह। मगर मौत के फरिश्ते के सामने अब ना चीख कारगर थी ना आंसू। रकिया ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। मोहल्ले के लोगों ने सर्द निगाहों से इसका जनाजा देखा। कुछ ने तो यहाँ तक कहा, ऐसी औरत की बख्शिश कैसे हो सकती है। और यूं रकिया का वो बदन जिस पर कभी हजारों लोग फिदा थे अब मिट्टी के ढेर तले दफन हो गया। रकिया को जब कब्र में उतारा गया तो गांव के लोग खामोश खड़े थे। चंद ने आंखों ही आंखों में तौबा की, किसी ने कलमा पढ़ा और किसी ने आह भरी, मगर दिल सब के बेचैन थे। उनके जहनों में यही था कि एक ऐसी औरत जिसने अपनी जिंदगी गुनाहों और फरेब में गुजारी, इसका अंजाम क्या होगा। पहले दिन कब्र के आसपास सुकूत था, लेकिन चंद ही दिन बाद वहां अजीब व गरीब मनाजिर नजर आने लगे। हर शाम के बाद जब अंधेरा छाने लगता तो कब्र के करीब काली बिल्लियों का जम गफीर दिखाई देता। वो बिल्लियां ऐसी न थीं जैसे आम गांव में घूमती फिरती हों। उनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जलती थीं और वो कब्र के ऊपर मंडलाती रहती। कोई उनके करीब जाने की हिम्मत न करता। रात को गुजरने वाले लोग अजीब व गरीब आवाज़ें सुनते, कभी चीखने की, कभी रोने की, कभी ऐसे लगता जैसे कोई औरत फरियाद कर रही हो, मुझे बचा लो, मुझे आग से निकालो। कुछ लोग समझे शायद वहम है, मगर जब ये वाक़यात बार बार हुए तो पूरे गांव में खौफो हरास फैल गया। एक रात चंद नौजवान तजस्सुस में कब्र के करीब जा पहुंचे। जैसे ही वो आगे बढ़े अचानक एक खौफनाक आवाज़ कब्र से उभरी, ऐसी आवाज़ जैसे कोई जंजीरों में जकड़ा हुआ इंसान चिल्ला रहा हो। नौजवान चीखते हुए वापस भाग गए। गांव के बुजुर्गों ने सबको जमा किया और कहा, बेटो ये अल्लाह का अजाब है। ये औरत सिर्फ गुनाहगार नहीं थी, बल्कि इसने बहुत सारी मासूम औरतें के घर उजाड़ाए थे। रकिया की ज़िंदगी एक मर्द ने बर्बाद की थी। इसने मर्दों से नफ़रत के बदले बहुत सारे मर्दों के घर बर्बाद किए थे। याद रखो, अल्लाह अपने हकूक़ तो मुआफ़ कर देता है, लेकिन बंदों के हकूक़ उस वक्त तक मुआफ़ नहीं होते जब तक मज़लूम मुआफ़ ना करे, और वो मज़लूम औरत दुनिया से रुखसत हो चुकी है। इसलिए रकिया के लिए माफ़ी के दरवाजे बंद हो गए। लोग ये सुनकर काँप उठे। कुछ ने फ़ौरन तौबा की, कुछ ने अपनी ज़िंदगियाँ बदल डाली। रकिया की कब्र आज भी इबरत का निशान बनी हुई है। लोग वहाँ से गुजरते हैं तो बच्चों को डराते नहीं, बल्कि सबक देते हैं। बेटियों, बेटो, देखो गुनाह की ज़िंदगी का अंजाम क्या होता है। दौलत, हुस्न और ऐश वक्ती है, मगर कब्र की पुकार हमेशा के लिए है। दोस्तों, रकिया की कब्र से निकलने वाली चीखें आज भी हमें ये सबक देती हैं कि दुनिया का ऐश चंद दिन का है, मगर कब्र की तन्हाई हमेशा के लिए है। अल्लाह के हुकूक तो तौबा से मुआफ़ हो सकते हैं, मगर बंदों के हुकूक उस वक्त तक मुआफ़ नहीं होते जब तक मज़लूम मुआफ़ ना करे। सोचो ज़रा, अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों में दूसरों के घर उजाड़ रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं, तो कल हमारी कब्र भी ऐसी पुकार ना बन जाए। फैसला आपके हाथ में है। आप अपनी कब्र को नूर से भरना चाहते हैं या चीखों का घर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।